अब मैं त्रिपुरा के माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मानिक शाह जी और पूर्व त्रिपुरा लोकसभा आसन के माननीय सांसद श्री रविंद्र त्रिपुरा जी, उनको मैं आग्रह करता हूं जनजाति जैकेट पहनाकर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। मोदी ताली। अब मैं हमारे अंबासा विधानसभा के माता उषा कन्या देवर्मा जी, जो हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि वो आए और जनजाति पगड़ी पहनाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। एक बार जोड़े करो ताली दें। अब मैं धलाई जिला के अध्यक्ष श्री परिमल देवर्मा जी और आसाराम बारी के प्रत्याशी श्रीमती जयंती देवर्मा जी से आग्रह करता हूं कि जनजाति कला चित्र भेंट करके माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मैं हमारे धलाई जिला के अध्यक्ष श्री परिमल देवर्मा जी और आसाराम बारी के प्रत्याशी श्रीमती जयंती देवर्मा जी को आग्रह करता हूं कि जनजाति कला चित्र भेंट करके माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मानिक शाह जी का स्वागत करें। अब मैं अपने राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वो मंच पर आए और अपना उद्घाटन करें। সবাইকে নমস্কার। খুলুমখা হাম্বাই। আজ আমরা সত্যি আনন্দিত যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে এখানে যে বিজয় সংকল্প যে র্যালি, সেই র্যালিতে
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী আদরণীয় শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি আজকে আমাদের মধ্যে আছেন। উনাকে আমি ত্রিপুরাবাসীর পক্ষ থেকে এখানে স্বাগত জানাচ্ছি। এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের যে ইস্ট পূর্ব আসনের মাননীয় লোকসভার সদস্য শ্রী রেবতী ত্রিপুরা মহোদয়, উপস্থিত আছেন আমাদের বর্তমান ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় মন্ত্রী এবং কমলপুর বিধানসভার মাননীয় বিধায়ক এবং ভারতীয় জনতা পার্টির তরফ থেকে এবার যাকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে শ্রী মনোজ কান্তি দেব মহোদয়, উপস্থিত আরেকজন ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় মন্ত্রী এবং পাবিয়া ছড়ার উনি মনোনীত ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী শ্রী ভগবান চন্দ্র দাস। এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের আরেকজন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী শ্রী বিকাশ চাকমা, উনি রাইমাবেলির থেকে উনাকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। উপস্থিত স্বপ্নদাস পাল মহোদয়া সুরমার মাননীয় বিধায়িকা এবং উনাকেও এবার মনোনয়ন ভারতীয় জনতা পার্টির তরফ থেকে দেওয়া হয়েছে। উপস্থিত আমাদের চণ্ডীপুর বিধানসভা থেকে যাকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে আমাদের বিজেপি পার্টির থেকে শ্রী টিঙ্কু রায় মহোদয়, উপস্থিত আছেন কৃষ্ণপুর বিধানসভার থেকে যাকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে শ্রী বিকাশ দেববর্মা মহোদয় এবং আমাদের এই আমবাসার মাননীয় বিধায়ক শ্রী পরিমল দেববর্মা এবং এই ডিস্ট্রিক্টের ধলাই ডিস্ট্রিক্টের মাননীয় সভাপতি। এখানে উপস্থিত আছেন অমিত কুমার রিয়াং, এসটি মোর্চার ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট। তাছাড়া আমাদের আরেকজন যাকে এবারও মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে এবং উনি এমএলএ আমাদের সেই ছামনুর বিধায়ক শ্রী শম্ভুলাল চাকমা মহোদয়। উপস্থিত আছেন সুচিত্রা দেববর্মা, ক্যান্ডিডেট আমবাসার থেকে এবার যাকে মনোনয়ন করা হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টির তরফ থেকে। তাছাড়া উপস্থিত আছেন আমাদের সবার প্রিয়, যাকে আমরা সবসময় শ্রদ্ধা করে এসেছি, আমাদের আইপিএফটির যিনি সভাপতি ছিলেন, কিছুদিন আগে উনি ইহলোক ত্যাগ করেছেন, উনার সুকন্যা আইপিএফটির থেকে এবার দাঁড়াচ্ছেন আসারাম বাড়ির থেকে শ্রীমতী জয়ন্তী দেববর্মা মহোদয়া। উপস্থিত আছেন আরেকজন ক্যান্ডিডেট করমছড়া থেকে আমাদের ব্রজলাল ত্রিপুরা। বন্ধুগণ, এখানে প্রেস বন্ধুরা আছেন এবং উপস্থিত সমস্ত বিশেষ করে জনজাতি ভাই ও বোনেরা এবং জাতি জনজাতি যাদেরই এখানে উপস্থিত আছেন সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বন্ধুগণ, আমরা এইরকম একজন নেতার অধীনে আমাদের আজকে ভারতবর্ষ চলছে, যার মার্গদর্শনে আজকে উনি যেটা বলেছেন যে অ্যাক্ট ইস্ট পলিসিতে উনি বলেছেন বারবার, যতক্ষণ ধরে নর্থ ইস্ট ডেভেলপ না হবে ভারতবর্ষ কোনোদিন ডেভেলপ হবে না। এবং সেই দিশায় আজকে নর্থ ইস্ট ডেভেলপ হচ্ছে। ত্রিপুরা তো সেইভাবে আরো বিশেষ করে উনার যে মার্গদর্শন আমাদের উপরে আছে এবং আশীর্বাদ আছে, ত্রিপুরাতে আজকে এই হীরা মডেল উনি আমাদের দিয়েছেন। আমাদের এখানে ন্যাশনাল হাইওয়ে মাত্র 6টা ছিল, 6টার কাজ এখন চলছে। এর আগে মাত্র একটা ন্যাশনাল হাইওয়ে ছিল 08, সেটাকে এখানে 6টা ন্যাশনাল হাইওয়ের কাজ প্রায় সম্পূর্ণর পথে। তাছাড়া আরো ন্যাশনাল হাইওয়ে আরো 7টার অর্থ মঞ্জুরি দেওয়া হয়েছে এবং প্রায় 10,222 কোটি টাকা তার জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। বন্ধুগণ, আমাদের এখানে ইন্টারনেট সারা ভারতবর্ষের মধ্যে সেই ইন্টারনেট স্ট্রংগেস্ট ইন্টারনেট আমাদের ত্রিপুরাতে আছে, যে কারণে এই ইন্টারনেটকে ব্যবহার করে আমাদের যুব ভাইয়েরা এবং আমরা সবাই সেটা সদ ব্যবহার করতে পারছি। সারা ভারতবর্ষ, সারা ত্রিপুরা, সারা ভারতবর্ষ, সারা পৃথিবী আমাদের হাতের মুঠোয় এখন। বন্ধুগণ, আমাদের কোনোদিন আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি, আমরা যখন ওয়েস্ট বেঙ্গলে যেতাম সেখানে আমাদের হাওড়া স্টেশনে যেতাম, আমরা শিয়ালদা স্টেশনে যেতাম, বিটি স্টেশনে যেতাম, বোম্বেতে, দিল্লিতে, আমরা ভাবতাম একমাত্র তাদের কাছেই এই রেল স্টেশন, আমাদের কোনোদিন সেটা হবে না। কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি 2014-তে যবে প্রধানমন্ত্রীত্বের দায়িত্ব পেলেন, অদ্ভুত এক সিচুয়েশন, অভূতপূর্ব
যে ডেভেলপমেন্ট আমরা ত্রিপুরাতে আমরা দেখতে পেয়েছি, ত্রিপুরার থেকে এখন প্রায় 11টার মতো স্পেশাল আমাদের যে এক্সপ্রেস ট্রেন এখান থেকে যাচ্ছে বিভিন্ন প্রদেশে। আমরা বন্ধুগণ কোনোদিন ভাবতে পারিনি যে ত্রিপুরার থেকে কোনোদিন রাজধানী এক্সপ্রেস যাবে, আমরা কোনোদিন কল্পনাও করতে পারিনি। এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রীজি যেভাবে আমাদের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন এবং তার বাস্তবায়ন সত্যিকারের অর্থে যে কতবার উনাকে প্রণাম জানাবো, উনাকে ধন্যবাদ দেব, প্রতিদিন কিছু না কিছু আমাদের জন্য করছেন। আমাদের এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা যাবে কোনোদিন ভাবতে পারিনি। আজকে আগরতলায় যে রেল স্টেশন আছে এত সুন্দরভাবে এটাকে সাজানো হচ্ছে, সেই আগরতলা রেল স্টেশন এখন ওখানে এসকালেটরও লেগে গেছে, এত সুন্দর রেল স্টেশন হচ্ছে। আমাদের সেই রেল এখন শেষ প্রান্তে ত্রিপুরার সাব্রুম পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। বন্ধুগণ, খালি উন্নয়নই উন্নয়ন, প্রধানমন্ত্রী যে মানে উন্নয়ন। ভারতীয় জনতা পার্টির যে জায়গায় যে রাজ্যে আমরা থাকি, ডাবল ইঞ্জিনের সরকার, এবং যে ইঞ্জিনকে চালাচ্ছে আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি। এবং আমরা উন্নয়ন ছাড়া কথা বলি না। আমাদের এয়ারপোর্ট, ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট আপনারা সবাই দেখেছেন। ত্রিপুরার যে ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট সেটা নর্থ ইস্টের মধ্যে সাপোজ টু বি দ্য বেস্ট এয়ারপোর্ট। সব দিকে আমাদের উন্নয়ন চলছে। সমস্ত রাস্তাঘাট এত সুন্দর সুন্দর রাস্তা হয়েছে। আমি প্রায় এসে বলেছি, প্রধানমন্ত্রীজি আমাদের যে পিচের রাস্তা, সিমেন্টের রাস্তা দিচ্ছে, সেই রাস্তা শুধু রাস্তা নয়, আমাদের ভবিষ্যতের রাস্তা উনি আমাদের দিচ্ছেন এবং সেই দিশায় আমাদের সরকার চলছে। বন্ধুগণ, অত্যন্ত দুঃখের সাথে আজকে বলতে হয়, কংগ্রেস সিপিএম এতদিন ধরে আমরা দেখেছি যে আগরতলায় ত্রিপুরাতে উনাদের সেই এখানে কুস্তি চলতো আর দিল্লিতে ওদের দোস্তি চলতো। আর আজকে এখানে গণতন্ত্র নেই বারবার বলে, আরে গণতন্ত্র আছে বলে আজকে এদের যে প্রেম এখন এখানে বেশি বেশি করে এখন দেখাচ্ছে। বন্ধুগণ, দুঃখ হয় এখন কমিউনিস্ট পার্টির যে অফিস সেখান থেকে কংগ্রেসের ফ্ল্যাগ বেরোয়, আর কংগ্রেসের যে অফিস সেখান থেকে সিপিএম এর ফ্ল্যাগ বেরোয়। এখন এরকম নেতা আছে, এখন ইনকলাব জিন্দাবাদ বলছে। এত খুনি সন্ত্রাসীর এই সরকার আমরা দেখেছি, বিগত 35 বছর আমরা দেখেছি। মানুষের কাছে উনারা যারা কংগ্রেসের উপর যে অত্যাচার ওরা করেছে, খুন দর্শন, যাদের অগ্নিসংযোগ করেছে, ওদের কাছে গিয়ে ওরা কি কথা বলবে, আমার এটাই এখন প্রশ্ন। বন্ধুগণ, আগামী দিন এই যে অশুভ জোটের বিরুদ্ধে যদি আমাদের কিছু করতে হয়, তাহলে আগামী 16 তারিখ আমাদের এখানে যারা ক্যান্ডিডেটরা আছেন, আমিও একজন ক্যান্ডিডেট, সবাইকে যার যার বিধানসভার মধ্যে গিয়ে 16 তারিখ ভুটান টিপে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে জয়যুক্ত করবেন, এই আশা আপনাদের কাছে রাখছি। এবং পুনর্বার ত্রিপুরাতে আমার ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন সরকার আপনারা গড়বেন, এটা আমি নিশ্চিত। বন্ধুগণ, আমরা চাই এই ত্রিপুরার মধ্যে একটা নাস্তিক পরিবেশ এই সিপিএম এর ওরা করেছিল, সেই জায়গায় এখন আস্তিক পরিবেশ এসছে। আমরা ভগবান বিশ্বাস করি, গড বিশ্বাস করি, সেই রকম একটা পরিবেশ, একটা সমাজ পরিবর্তনের যে সরকার, তার নাম হচ্ছে বিজেপি সরকার। আগামী দিন অবশ্যই আবার ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীনের সরকার এখানে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে এবং আমরা জাতি জনজাতির যে সম্পর্ক সেটাকে আরো সুদৃঢ় করে আগামী দিন আমরা চলতে চাই। এই 2-4টি কথা বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। আমি আপনাদের একবার আমি আওয়াজ দেব, আপনারা আমার সাথে সাথে বলবেন, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। ধন্যবাদ আম্বাই। অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मानिक शाह जी के। माननीय प्रधानमंत्री जी, ये धलाई जिला आकांक्षी जिला है। आपके द्वारा विकास के कार्य एवं जन भावनाओं के अनुसार बहुत तेजी से धलाई जिला आगे बढ़ रहा है। अब मैं विश्व नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हम सब लोगों के प्रिय योग पुरुष आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी से विनती करता हूं, इस विजय संकल्प सभा को संबोधित करें।
जोतोनो कोलोमका जोतो कांदा सबके नमस्कार। त्रिपुरा चुनाव की मेरी ये पहली जनसभा है। यहां मैं देख रहा हूं कि इतनी बड़ी संख्या में जहां भी मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। वहां ऊपर भी लोग खड़े हैं। आप इतनी बड़ी तादाद में हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बड़ी संख्या में जनजातीय समाज के मेरे भाई बहन, वे जब आशीर्वाद देते हैं तो उन आशीर्वाद की पवित्रता, उसका सामर्थ्य कई गुना बढ़ जाता है। ढलाई जिले का ये उत्साह साफ साफ त्रिपुरा का मूड बता रहा है। त्रिपुरा ये ठान चुका है कि विकास का डबल इंजन अब रुकने वाला नहीं है। इसलिए आज त्रिपुरा के कोने कोने में एक ही आवाज है, एक ही नारा है, एक ही जय घोष है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार डबल इंजन सरकार का ये मंत्र। भाइयों और बहनों, आज मैं त्रिपुरा की संतान, विजनरी नेता नरेंद्र चंद्र देव वर्मा जी, उनको भी आदरपूर्वक याद कर रहा हूं। हम सब उन्हें एनसीदा के नाम से बुलाते थे। त्रिपुरा के विकास को लेकर अक्सर मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने समझने का अवसर मिलता था। आज एनसीदा हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें हम सभी के बीच है और आने वाले समय में भी हमें प्रेरणा देती रहेगी। मुझे संतोष है कि देश ने उनके योगदान को सम्मान देते हुए इस वर्ष उन्हें भारत का बहुमूल्य ऐसा पद्मश्री का सम्मान दिया। यह हमारा सौभाग्य है। श्री विक्रम बहादुर जमातिया जी को भी पद्मश्री देकर भारतीय जनता पार्टी सरकार का गौरव बढ़ा है। भाजपा सरकार ने कोशिश की है कि त्रिपुरा और राष्ट्र के विकास में जनजातीय समाज के योगदान को पूरा देश देखे, पूरा देश जाने। भाइयों और बहनों, दशकों तक कांग्रेस और वामपंथियों के शासन ने त्रिपुरा को विकास के हर पैमाने पर पीछे धकेल दिया था। लेकिन डबल इंजन की सरकार सिर्फ 5 वर्षों में ही त्रिपुरा को तेज विकास की पटरी पर ले आई है। अब त्रिपुरा की पहचान
हिंसा नहीं है। त्रिपुरा की पहचान पिछड़ापन नहीं है। त्रिपुरा में आए बदलाव का एक और उदाहरण ये चुनाव में भी है। आज आप देखिए, त्रिपुरा में चुनाव हो रहे हैं तो हर पार्टी का झंडा दिख रहा है। 5 साल पहले क्या किसी और दल को अपना झंडा भी गाड़ने दिया जाता था क्या? त्रिपुरा में ज्यादातर जगहों पर पहले एक ही पार्टी का झंडा फहराने की इजाजत थी। उनके लोकतंत्र की ये डेफिनेशन थी। बाकी कोई हिम्मत नहीं कर सकता था। और अगर किसी ने अपने घर पे झंडा लगा दिया तो घर के घर जला दिए जाते थे। आज भाजपा सरकार ने डर, भय और हिंसा से त्रिपुरा को मुक्ति दी है। साथियों, पहले त्रिपुरा में जीवन के हर बात में एक शब्द सुनाई देता था, चंदा। कुछ भी हो, चंदा। गाड़ी लाए, चंदा। घर बना रहे हो, चंदा। दुकान खोल रहे हो, चंदा। इन लोगों ने 3 दशक तक त्रिपुरा में चंदा 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 हर किसी को लूटने का लाइसेंस देके रखा था। किसी न किसी बहाने से लोगों को चंदा देना ही पड़ता था। अब भाजपा सरकार त्रिपुरा को चंदा चंदा करने वालों से ही मुक्त कर दिया है। पहले त्रिपुरा के सरकारी कर्मचारियों को पुराने आधार पर ही वेतन मिला करता था। भाजपा सरकार त्रिपुरा में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करके लाखों कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया। पहले त्रिपुरा में सिर्फ वामपंथी काडर को ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता था। अब भाजपा सरकार में त्रिपुरा के हर नागरिक को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। पहले त्रिपुरा में लोग पुलिस थाने तक मुश्किल से पहुंच पाते थे। पहुंचने के पहले भी चंदा देना पड़ता था, पहुंचने के बाद भी चंदा देना पड़ता था। थानों पर भी सीपीएम कैडर का ही कब्जा था। अब भाजपा के शासन में त्रिपुरा में कानून का राज स्थापित हुआ है। साथियों, आप याद करिए, हिंसा के उस दौर में महिलाओं पर, हमारी बहनों, हमारी बेटियों पर कितने अत्याचार हुए थे। लेकिन आज त्रिपुरा में महिला सशक्तिकरण हो रहा है। महिलाओं का जीवन आसान बनाने वाले काम हो रहे। अभी मेरे त्रिपुरा की एक मां ने आकर के मुझे पगड़ी पहनाई। सिर्फ पगड़ी पहनाई नहीं, बहुत ही एक बेटे को जैसे आशीर्वाद दे, उस मां ने मेरे सर पे हाथ रख के मुझे आशीर्वाद दिया। इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या होता है। मुझे खुशी है इस चुनाव में यहां से हमारी एक युवा बेटी ही भाजपा की उम्मीदवार है। साथियों,
पहले की सरकारों के दौर में ढलाई भारत के सबसे पिछड़े जिलों में एक था, लेकिन डबल इंजन सरकार ने ढलाई को आकांक्षी जिला घोषित किया और विकास के हर पहलू पर ध्यान दिया। इसका परिणाम यह है कि आज ढलाई देश के 110 आकांक्षी जिलों में दूसरे स्थान पर आ चुका है। दूसरे स्थान पर ये बहुत बड़ा काम है। मैं सरकार को, सभी अफसरों को ढलाई के लोगों की इतनी बड़ी सेवा करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, मुझे खुशी है कि आज ढलाई के साथ ही पूरे त्रिपुरा में विकास के हर पैमाने पर प्रगति दिखाई दे रही है। मैं त्रिपुरा बीजेपी की सराहना करूंगा, जिसने बहुत मंथन करके यहां के गांव-गांव जाकर के लोगों को क्या चाहिए, लोग क्या कहना चाहते हैं, हर किसी से सुझाव लेकर के एक सशक्त संकल्प पत्र जारी किया है। ये संकल्प पत्र साबित करता है कि भाजपा जो कहती है वो वही होता है जो आप चाहते हैं, और भाजपा वही करती है जो आपकी प्राथमिकता होती है, आपकी जरूरत होती है। त्रिपुरा के गरीबों के लिए, यहां के युवाओं के लिए, हमारी माताओं बहनों के लिए, हमारे विशाल जनजातीय समुदाय के लिए, यहां की कनेक्टिविटी के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नए लक्ष्य तय किए और भाजपा ने संकल्प पत्र में, मैनिफेस्टो में नए लक्ष्य के साथ नए कदम का फैसला लिया है। मैं हमारे मित्र और यहां के जनप्रिय, लोकप्रिय मुख्यमंत्री माणिक साह जी, प्रदेश भाजपा के सभी साथियों को भी इतना बढ़िया संकल्प पत्र देने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। त्रिपुरा के लोगों को याद रखना है, 16 फरवरी को आपका एक एक वोट भाजपा और उसके सहयोगी दलों को ही देना है। आपके एक वोट की शक्ति से ही त्रिपुरा वामपंथियों के कुशासन से मुक्त हुआ है। अब आपका एक वोट ही डबल इंजन की सरकार की वापसी कराएगा, वामपंथियों को सरकार से दूर रखेगा। साथियों, 5 साल पहले जब मैं त्रिपुरा आया था तो आपसे हीरा, HIRA, हीरा यानी हाईवे, इंटरनेट, रेलवे और एयरवे का वादा किया था। त्रिपुरा के विकास को हाईवे, इंटरनेट, रेलवे और एयरवे से सशक्त करने के लिए भाजपा की डबल इंजन सरकार ने दिन रात काम किया है। त्रिपुरा में नेशनल हाईवे की लंबाई 2 गुनी करने का काम तेज गति से चल रहा है। चुराईबारी वहां से लेकर के अगरतला नेशनल हाईवे भी 2 लेन से 4 लेन का हो गया है। त्रिपुरा में गांवों को जोड़ने के लिए
बीते वर्षों में 5,000 किलोमीटर के करीब नई सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले साल जनवरी में अगरतला को नए एयरपोर्ट की सौगात मिलने के अवसर पर मैं आप सबके बीच भी आया था। आज जो कोई अगरतला एयरपोर्ट आता है तो उसकी भव्यता देखकर वो हैरान रह जाता है। त्रिपुरा में गांव-गांव तक ऑप्टिकल फाइबर बिछाने और मोबाइल टावर के द्वारा 4G कनेक्टिविटी पहुंचाने के प्रयास जारी है। पिछले 8 वर्षों में त्रिपुरा में 3 गुने से ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर बिछाए जा चुके हैं। साथियों, कनेक्टिविटी का ये विस्तार सिर्फ त्रिपुरा के भीतर ही नहीं हो रहा, बल्कि आज त्रिपुरा अभूतपूर्व तरीके से दुनिया से कनेक्ट कर रहा है। अब मेरा त्रिपुरा ग्लोबल बन रहा है, ग्लोबल। हम त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए वाटरवेज को भी विकसित कर रहे हैं। बांग्लादेश और भूटान के साथ साथ नदियों के रास्ते पहले से व्यापार हो रहा है। बांग्लादेश के साथ सड़क और रेल कनेक्टिविटी भी मजबूत हो रही है। जल्द ही अगरतला से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भी शुरू हो जाएगी। त्रिपुरा दक्षिण पूर्व एशिया का गेटवे बनने की ओर अग्रसर है और अभी मुख्यमंत्री जी एक्ट ईस्ट पॉलिसी की चर्चा भी कर रहे थे। इसका बहुत बड़ा लाभ त्रिपुरा की अर्थव्यवस्था को होगा, त्रिपुरा के नौजवानों को होगा, यहां के लोगों को होगा। साथियों, त्रिपुरा पर मां त्रिपुर सुंदरी का आशीर्वाद है। भाजपा सरकार त्रिपुरा की ताकत को एक और त्रिशक्ति से बढ़ा रही है। इसमें पहली शक्ति है आवास। त्रिपुरा के लोगों को पक्का घर। दूसरी शक्ति है आरोग्य। त्रिपुरा के लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं। और तीसरी शक्ति है आमदनी। त्रिपुरा के लोगों को आय में वृद्धि। आवास, आरोग्य और आय की ये त्रिशक्ति त्रिपुरा के लोगों का जीवन आसान बना रही है। मेरे गरीब भाई बहन, मेरी माताएं बहनें, हमारी बेटियां, मेरे किसान भाई बहन, हमारे श्रमिक भाई बहन, सभी को बीते 5 वर्षों में भाजपा सरकार की स्त्री शक्ति का लाभ लगातार मिलता रहा है। साथियों, त्रिपुरा में पीएम आवास योजना ने यहां के लोगों का जीवन बदल दिया है। वो गरीब जो कभी सोच तक नहीं सकते थे, पीढ़ियां बीत गई, पक्का घर कभी मिला नहीं, उन्हें भी पीएम आवास योजना का पक्का घर मिल रहा है। त्रिपुरा में भाजपा सरकार ने बीते 5 साल में करीब करीब 3 लाख पक्के घर बनाकर गरीब को दिए हैं। जो दिल्ली में बैठे हुए ना, वो जब ये आंकड़ा सुनेंगे तो वो सोचते रह जाएंगे
त्रिपुरा जैसा छोटा राज्य और इतने कम समय में 3 लाख परिवारों को पक्का घर, इससे बड़ी सरकार की तेज गति क्या हो सकती है, डबल इंजन की ताकत क्या हो सकती है। और अगर एक परिवार में 4 से 5 लोग भी मानूं तो 10 से 12 लाख लोगों का सीधे सीधे पीएम आवास योजना का लाभ हुआ है। उनकी जिंदगी में एक नई आशा का संचार हुआ है। त्रिपुरा की 40 लाख की आबादी को देखते हुए ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। ये है भाजपा सरकार के काम करने का तरीका। ये है डबल इंजन की सरकार के काम करने के परिणाम। जो लोग झूठ बोलकर, साजिशें रचकर भाजपा सरकार को हटाने के सपने देख रहे हैं, उनके सामने ये लाखों लोग भाजपा का सुरक्षा कवच बन करके आज दीवार बन करके खड़े हैं। मैं आप सबको नमन करता हूं। साथियों, त्रिपुरा के लोगों ने लेफ्ट और कांग्रेस के बरसों के कुशासन में एक बहुत बड़ी पीड़ा भुगती है। ये पीड़ा थी स्वास्थ्य की सुविधाओं में कमी। घर में कोई बीमार हो जाए तो यहां के लोगों के पास इलाज के लिए ना तो अच्छे अस्पताल थे, इलाज के पैसे भी उनकी बहुत बड़ी चिंता थे। भाजपा सरकार को आपकी इस चिंता का ध्यान था, इसलिए ही हम 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देने वाली आयुष्मान भारत योजना लेकर के आए। और मुझे खुशी है, त्रिपुरा के करीब करीब 2 लाख से भी ज्यादा गरीब मरीजों को गंभीर बीमारी की स्थिति में आयुष्मान योजना ने मदद की और उनकी जिंदगी बचाने का पुण्य प्राप्त किया है। आप कल्पना करिए, अगर आयुष्मान योजना न होती, अगर भाजपा सरकार न होती, तो क्या ये सुविधाएं त्रिपुरा के गांवों में मेरे गरीब के घर तक पहुंचती क्या? जनजातीय समुदाय के घर तक पहुंचती क्या? हमारी माताओं बहनों को बीमारी से मुक्ति मिलती क्या? आयुष्मान योजना के साथ साथ हमने त्रिपुरा में अस्पतालों के निर्माण पर भी बल दिया है। हाल में ही पहला, आजादी के इतने सालों के बाद पहला डेंटल कॉलेज भी त्रिपुरा को देने का सौभाग्य हमें मिला है। कांग्रेस और लेफ्ट गरीब से सिर्फ विश्वासघात करना जानते हैं। वो गरीब को कभी किसी चिंता से मुक्त नहीं कर सकते। साथियों, भाजपा सरकार की कोशिश सिर्फ आपको बेहतर इलाज की सुविधा देने की नहीं, लेकिन भाजपा सरकार हर वो उपाय कर रही है कि आपको बीमार पड़ने की नौबत ही ना आए। जब हर घर नल से जल आता है तो घर में बीमारी कम होती है। जब हर घर में शौचालय की सुविधा पहुंचती है तो घर से बीमारी भी दूर भागती है। जब हर घर में उज्ज्वला का गैस कनेक्शन पहुंचता है
तो रसोई से धुआं कभी ऊपर नहीं उठ पाता है, उसको भागना ही पड़ता है। और सिर्फ धुआं नहीं, बीमारी भी भागती है। भाजपा आपकी सेवक की तरह, सच्चे साथी की तरह, आपके सुख दुख के संबल की तरह आपकी हर चिंता दूर करने का काम आज भाजपा सरकार दिन रात मेहनत करके कर रही है। भाजपा सरकार की वजह से यहां 4 लाख से ज्यादा घरों में शौचालय बने हैं। भाजपा सरकार की वजह से यहां 4 लाख से ज्यादा घरों में पाइप से पीने का पानी पहुंचा है। भाजपा सरकार की वजह से यहां करीब करीब 3 लाख घरों में गैस कनेक्शन पहुंचा है। आप मुझे बताइए साथियों, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां कभी आपकी सेवक बनकर काम कर सकती है? कांग्रेस और लेफ्ट तो त्रिपुरा के लोगों का जीवन आसान बनाने वाली ऐसी हर योजना को बंद कर देना चाहती है। इसलिए त्रिपुरा के लोगों को लेफ्ट और कांग्रेस की ये दुधारी तलवार से सतर्क रहना है। भाइयों और बहनों, आवास, आरोग्य के साथ ही आय भी त्रिपुरा के लोगों की नई त्रिशक्ति बनी है। भाजपा सरकार ने जितना त्रिपुरा के लोगों की आय बढ़ाने के लिए किया है, उतना पहले कभी त्रिपुरा में हुआ ही नहीं। आय उनकी बढ़ती थी क्योंकि वो चंदा ले लेते थे। हम आपकी आय बढ़ाने में लगे हैं। भाजपा सरकार अभी तक त्रिपुरा के 2.5 लाख से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में 500 करोड़ रुपए से अधिक जमा कर चुकी है। और वहां कोई बिचौलिया नहीं, कोई चंदा चोर नहीं। यहां हमारे ढलाई के भी करीब करीब 40,000 किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान निधि के 80 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि का बहुत लाभ त्रिपुरा के धान बोने वाले किसान को हुआ है। अब तो त्रिपुरा बीजेपी ने ऐलान किया है कि सरकार में वापसी के बाद इस राशि में और वृद्धि की जाएगी। साथियों, मुझे याद है जब त्रिपुरा में भाजपा सरकार नहीं थी तो किसानों को एमएसपी के नाम पर कुछ खास नहीं मिलता था। लेफ्ट के शासन में किसानों को एमएसपी का लाभ मिलना एक सपने की तरह था। लेकिन अब भाजपा सरकार में जब एमएसपी की घोषणा होती है तो यहां त्रिपुरा के भी हर किसान को उसका लाभ मिलता है। त्रिपुरा में धान पैदा करने वाले 27,000 से ज्यादा किसानों ने उनके खाते में भाजपा सरकार ने करोड़ों रुपए सीधे जमा कर भेजे हैं। भाइयों और बहनों, आवास, आरोग्य और आय की स्त्री शक्ति का सबसे बड़ा लाभार्थी हमारा जनजातीय समाज है। एक क्षेत्र तो वन संपदा के लिए, वन उपज के लिए मशहूर है। बांस करील को लेकर पहले की सरकारों का क्या रवैया था, ये आप भी जानते हैं। कांग्रेस और लेफ्ट की सरकारों के दौरान तो बांस काटना और इसका व्यापार, उस पर भी प्रतिबंध था, बैन था।
ये भाजपा सरकार ही है जिसने इस कानून को हटाया। भाजपा सरकार तो अब बांस से बने उत्पादों का देश दुनिया में प्रचार कर रही है। इसका लाभ सबसे अधिक जनजातीय समाज को हो रहा है। मुझे खुशी है कि आज त्रिपुरा में देश का पहला बांस पार्क बना है। साथियों, त्रिपुरा में भाजपा सरकार अगरवुड की खेती को भी प्रोत्साहित कर रही है। भाजपा सरकार अगर नीति लेकर के आई है, इससे हजारों किसानों की आय बढ़ने वाली है। 2014 से पहले कुछ ही वन उपजों पर एमएसपी मिलता था, लेकिन हम 90 से अधिक वन उपजों को एमएसपी के दायरे में लाए हैं। साथियों, भाजपा सरकार देश में कहीं भी हो जनजातीय समाज के विकास के लिए पूरी ईमानदारी से काम करती है। अटल जी की सरकार ने पहली बार आदिवासी समुदाय के लिए अलग मंत्रालय बनाया, अलग बजट बनाया। अब तो हमने आदिवासी विकास के लिए बजट को 5 गुना कर दिया है। जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, उसके मुकाबले 1 लाख करोड़ रुपए ज्यादा का बजट इस बार जनजातीय समाज के लिए रखा है। इसका बहुत बड़ा लाभ मेरे त्रिपुरा के जनजातीय समाज को होने वाला है। साथियों, ये हमारी ही भाजपा सरकार है जिसने सरकारी स्कूलों में कोकबोरोक भाषा को एक विशेष विषय के रूप में शामिल किया है। आज इसे त्रिपुरा के सैकड़ों स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। भाजपा सरकार ने जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई है, उससे स्थानीय भाषा में पढ़ाई और आसान हुई है। अब डॉक्टरी और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी स्थानीय भाषाओं में हो सकेगी। यानी मेरे गरीब आदिवासी भाई बहन का बेटा बेटी भी अब डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना आसान से पूरा कर सकेगा। साथियों, दिल्ली में जब कांग्रेस लेफ्ट की सरकार थी, जब यहां सीपीएम की सरकार थी, तब उन्होंने जनजातियों के बीच में भी दरारें पैदा कर दी। इन दलों ने समाज के एक दूसरे के बीच टकराव को बढ़ावा दिया। दशकों तक यहां ब्रू रियांग का मुद्दा चलता रहा, लेकिन इन्होंने उसके स्थायी समाधान के लिए प्रयास नहीं किए। डबल इंजन सरकार ने इसे सुलझाया और आज हम ब्रू रियांग समुदाय की हर समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बजट में ब्रू रियांग जैसी जनजातियों के लिए भी एक विशेष योजना बनाई गई है। यही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है। यही डबल इंजन सरकार की पहचान है। लेकिन साथियों, मैं आपको एक बात में सतर्क करना चाहता हूं। कांग्रेस और लेफ्ट के लोग मिलकर छल कपट में जुटे हैं। कुशासन के पुराने खिलाड़ियों ने हाथ मिला लिया है। साथ ही कुछ दूसरे दल भी उनकी पीछे से मदद कर रहे हैं। ऐसे दलों का नाम और नारा कुछ भी हो, लेकिन उनको जाने वाला एक एक वोट त्रिपुरा को फिर से पीछे धकेल देगा। इसलिए 16 फरवरी को सिर्फ और सिर्फ कमल के फूल पर और आईएफटी के चुनाव चिन्ह पर ही बटन दबाना है। आप ये याद रखेंगे ना? रखेंगे ना? गांव गांव जाएंगे,
आस पड़ोस में जाएंगे, औरों को भी बताएंगे, अच्छा मेरा एक काम करेंगे, पक्का करेंगे, सबके घर जाना और बताना कि हमारे मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है, इतना मेरा संदेश बता देंगे। चलिए, इतनी बड़ी संख्या में आकर के आपने आशीर्वाद दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत ही धन्यवाद। विश्व के नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम धलाई वासियों का मार्गदर्शन करने के लिए